عاشق رسول تھے، بابا الحاج تھے۔ بابا بہت پڑھے لکھے عالم تھے۔ انہوں نے اپنی شاعریوں سے دنیا کو حیران کر دیا۔ بڑے بڑے قوال آتے تھے، امجد صابری جیسے بابا کی شاعری استعمال کرتے تھے۔ پر سب سے پہلے کا ایسے ہی ہوتا ہے، مردہ بھی ایسے ہی کا دوستوں، تو آج ہم اس درگاہ کے اوپر موجود ہیں۔ یہ صوفی بزرگ وہ صوفی بزرگ ہیں جن کا شجرہ نسب وارث علی شاہ سرکار سے ملتا ہے، جن کا روضہ مبارک انڈیا کے اندر ہے۔ وارث پاک وہ وارث پاک ہیں جن کا آپ کو مزید ڈیٹیل ابھی ہم آگے اس ویڈیو میں دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں انور شاہ کی، جن کی درگاہ پہ ہم موجود ہیں۔ انور شاہ وہ ہستی ہیں جو پہلے زندہ ولیوں میں موجود پائے جاتے تھے۔ ان کے وصال کو 31 سال ہو گئے اور ان کا عرس مبارک آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ کب ان کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اور ان کی قبرستان میوہ شاہ، مطلب میوہ شاہ قبرستان کے اندر ان کا روضہ مبارک ہے۔ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ صوفی شخصیتیں جن کے باروں میں لوگ کلام کے ذریعے ذکر کرتے تھے انور شاہ کا۔ آپ ہمارے ویورز کو کیا کہنا چاہتے ہیں انور شاہ کے بارے میں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بابا وہ عاشق رسول تھے، بابا الحاج تھے۔ بابا بہت پڑھے لکھے عالم تھے۔ انہوں نے اپنی شاعریوں سے دنیا کو حیران کر دیا۔ بڑے بڑے قوال آتے تھے، امجد صابری جیسے بابا کی شاعری استعمال کرتے تھے۔ بابا نے ان کو شاعری دی، یا صاحب و جمال شاعری دی، تاجدار حرم۔ پھر انہوں نے شاعری یہ پڑھا کلام کا، پھر ان کو بلندیوں پہ پہنچ گئے۔ یہ بتائیں، یہ جو میوہ شاہ کا قبرستان ہے یہ کتنے ٹائم سے آباد ہے؟ یہ میوہ شاہ کی وفات کو ہو گئے تقریباً 160 سال ہو گئے تقریباً۔ اور ان کی جو میوہ شاہ سیدنا میوہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی تھی وہ تقریباً 150 سال ان کی زندگی تھی۔ اور یہ کابل سے آئے تھے ہجرت کر کے دین تبلیغ کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ اور میوہ شاہ کی زندگی 150 سال تھی اور ان کی وفات کو ہو گئے تقریباً 160 سال ہو گئے۔ اور یہ قبرستان میوہ شاہ کے نام پر یہ پارٹیشن قیام پاکستان سے پہلے کا قبرستان ہے یہاں پر۔ مطلب پاکستان وجود میں بھی نہیں تھا تو یہ وجود میں تھا؟ جب یہ اس ملک کا نام ہندوستان تھا اس سے بھی پہلے کا یہ قبرستان ہے یہاں پر، برٹش کے ٹائم کا؟ جی ہاں۔ امجد صابری نے جو کچھ کلام پڑھے ہیں وہ بابا کی شاعری؟ جی ہاں، بابا کی شاعری یہیں سے لے کے جاتے تھے۔ بابا کی اپنی کتابیں لکھی، اپنے ہاتھ کا شاعری۔ کون سے ایسے کلام ہیں جو امجد صابری نے پڑھے ہیں شاہ صاحب کے؟ شاہ صاحب کے پڑھے انہوں نے یا صاحب و جمال، تاجدار حرم، اور میں کوئل میرا باغ مدینہ، میں صلیہ میری کو۔ اچھا، یہ جو پروگرام ہمارے ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس میوہ شاہ کے حوالے سے، انور شاہ کے حوالے سے، کہ کیسے صوفی بزرگ ہیں اور ان کے پاس آنے سے کیا فیض حاصل ہوتا ہے؟ ان کے پاس آنے سے روحانیت آپ کو ملتی ہے۔ ان کے پاس آنے سے دعائے خیر کرنے سے آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ یہ دین بزرگ آئیں، ان کی نظر کرم ہو جاتی ہے، پھر بندے کو سکون آ جاتا ہے۔ یہاں دعا خیر ملنے سے سکون آتا ہے۔ اور بھی مہمان آتے ہیں، کہاں سے لوگ آتے ہیں، غیر ملک سے آتے ہیں۔ یہاں پہ کون سے ایسے صوفی بزرگ ہیں جو مطلب لوگ جن کو پہچان ہی نہیں پائیں اور وہ بڑے اللہ کے نزدیک ہیں؟ آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، یہاں پر سب سے پہلے عبد القیوم شہید کا بھی مزار ہے۔ اور اس کے بعد انور شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عاشق رسول ہے، یہ پورے ورلڈ میں ان کا نام ہے۔ اور میوہ شاہ کا مزار ہے سامنے، یہ انور شاہ وارثی مزار ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس علاقے میں ہمارے میاں عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں علی صاحب کے پوتے ہیں۔ میاں علی صاحب کا جو مزار ہے وہ ضلع میاں والی کے اندر ہے۔ ان کے پوتے ہیں میاں عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو موجودہ صدر نشین ہے حاجی میاں اختر علی شاہ بھائی جان، وہ یہاں پر گدی نشین ہے۔ یہاں پر پیچھے ان کا مزار ہے میاں عبدالستار صاحب کا۔
वो अल्ताफ़ हुसैन है, उनकी भी किसी अजीज़ व वक़ार की कब्र है इधर मेवा शाह कब्रिस्तान में। जी है, कब्र है उनके ना मामू की कब्र है, मामू की कब्र है। और पिछले दिनों उनकी मामी का भी इंतकाल हुआ, उन्होंने वीडियो कॉल से माजरत किया, दुआ खैर किया। मेवा शाह में जी ये पास ही है। यहाँ पे मतलब सुना है कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो खुर्रम वारसी देखते हैं, अल्ताफ़ हुसैन के जो भांजे हैं। खुर्रम वारसी नहीं देखते, इनका तो नहीं सुना है। मेरे ख्याल से ये दिलबर शाह है ना, ये पहले 10 साल पहले चले गए थे, अभी वो फिर आए। हाँ, अभी वो खुद इंतज़ामिया बने हुए हैं। दिलबर शाह के हाथ में पूरा मेवा शाह का सिस्टम, मेवा शाह का सिस्टम नहीं है, कब्रिस्तान का और इधर ये मज़ार का। वारसी का निज़ाम, वारसी निज़ाम ये दिलबर शाह के हाथ में। तो आप ये हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं अंबर शाह के हवाले से? बाबा अंबर शाह तो सुभान अल्लाह महाराज सुल्तान, इनके बारे में क्या कहें। बाबा ख़ुद कोयलों से सोना बनाते थे, आसमान में देख के शायरी लिखते थे, कभी कहाँ पे बैठ के शायरी लिखते थे, सल्ले अल्लाह। ये शायरी भी उन्हीं का लिखा हुआ, मेरा ज़िक्र फ़िक्र है बस ये सल्लु अलैहि। बाबा जी के शेर लिखे हुए सर, बाबा जी की शायरी लिखी है। बाबा जी को कितना टाइम हो गया इस मेवा शाह में विसाल करे? का ऑर्डर हुआ, बाबा पहले यहाँ पे आए, फिर बाबा कब्रस्तान में इधर ही बैठते थे, यहीं बाबे का जगह होता था। बाबा फिर हयाती में शायरी लिखते रहते थे, फिर बाबे का पर्दा हो गया, कम से कम 28 साल हो गए। अच्छा, बाबा बैठते भी इसी जगह पे थे जहाँ इनकी अभी ये मज़ार मुबारक है? ये बाबे का स्थान है सामने। बाबा जी यहीं बैठते थे, आवाम को भी आपने देखा है बाबा जी को? हम पैदा नहीं हुए थे, पैदा नहीं हुए थे? बैठे हुए हैं। अच्छा, बाबा जी को कितना टाइम हो गया? 28 साल हो गए पर्दा हुए। हाँ, वरना बहुत पहले ही अंबर शाह वारसी मज़ार जो है, इनका उर्स होता है सफ़र की 12 तारीख को होता है। तो यहाँ पर उर्स आलीशान उर्स होता है। यहाँ पर पहले सबसे पहले लंगर खिलाया जाता है, और उसके लंगर खिलाने के बाद पूरी रात यानी कि कवाली होती है, पूरी रात कवाली होती है। अच्छा, आप अभी बता रहे थे ना कि कब्रिस्तान बड़ा ब्रिटिशरों के टाइम का है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रोने वाक़यात भी आपने देखे होंगे, सुने होंगे? असल में पता है क्या, यहाँ पर ये कब्रिस्तान है, रात में वीराना सन्नाटा होता है। रात में यहाँ वीराना सन्नाटा होता है, तो यहाँ पर अमलियात के लोग, जादू तावीज़ टूणे वगैरह के लोग अंधेरा का फ़ायदा उठा के यहाँ पर आते हैं, अमलियात का वगैरह काम करते हैं, छिप छिपा के काम करते हैं। जी हाँ। तो मतलब कभी आपने ऐसा वाक़या देखा अपनी आंखों से? यार मैंने तो अपनी आंखों से नहीं देखा, ज़ाहिर है रात में वीराना सन्नाटा खौफ होता है, तो कुत्ते बिल्लियों में यहाँ से गुजरते तो बंदे को आट से महसूस होती है कि डर तो खौफ तो होता है ज़ाहिर कब्रिस्तान में। अच्छा, इस कब्रिस्तान को ये बोला जाता है कि कराची का सब में बड़ा कब्रिस्तान है? जी हाँ बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। सबसे कदीमी कब्रिस्तान ये है, माई मकली का कब्रिस्तान है, लेकिन उसको ज़्यादा अहमियत इसलिए हासिल है कि यहाँ वहाँ पर बादशाहों के मकबरे ज़्यादा है वहाँ पर, लेकिन रकबे के लिहाज से ये मेवा शाह बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। जी अच्छा, यहाँ की इंतज़ामिया को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, ये जो यहाँ की सफाई सुथराई, लाइट वगैरह, ये यहाँ असल में रात में मुहर्रम में शबरातों में यहाँ लाइटें वगैरह लगती हैं, लेकिन उसके बाद कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पर, यानी आम दिनों में रात में वीराना सन्नाटा ही होता है। इधर डकैतियाँ वकैतियाँ लगती है, और कुछ हिरोनी इधर कपड़ों के लोहे ले जाते हैं, बस। और क्या कहना चाहते हैं? हिरोनियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ये लोग क्या कब्रिस्तान के टाइल वगैरह के लोहे तक निकाल लेते हैं? हाँ, ये तोड़ के ले जाते हैं, बेचते हैं, फिर रोन पीते हैं। तो आप लोग यहाँ पे कोई मारते वारते नहीं है इनको? नहीं मारते क्या है इसको। 10 साल हो गए मेरे को। हाँ, तो ये बताएं कि यहाँ की जो इंतज़ामिया यहाँ काम करती है, सही करती है? सही करती है बिल्कुल। अच्छा, ये जो अंबर शाह की दरगाह है, यहाँ पे कितने टाइम से अंबर शाह की ये दरगाह मौजूद है? अंबर शाह वास्ती तो यूनुस न्याजी है, सामने बराबर में गौर कर, उसका इलाका है वो। हाँ, उसका। तो इधर जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे नशे आदमी लोग पूरा मेवा शाह में नशे ही है भाई, कब्रें रात को आके तोड़ते हैं सरिया के लिए, कब्र सरिया निकाल ले जाते हैं, बेचते हैं। क्या बोलना चाहते हैं आप यहाँ की इंतज़ामिया को? इंतजामिया को यही बोलते हैं कि इनको थोड़ा रोको भाई, इनको ये रात को आते हैं, कब्रों को तोड़ के सरिया ले जाते हैं भाई, इनको पकड़ो। अच्छा, कितना टाइम हो गया इस कब्रिस्तान को आबाद हुए? ये तो तकरीबन 200 साल, कितना साल पुराना कब्रिस्तान है। इधर हिंदुओं का भी कब्रिस्तान है, गैर मुल्की थे, कौन सा क्या अवधि है पत्नी, कौन से गैर मुल्क वाले 400 साल पुराने भी कब्र में आपको बता सकता हूँ, 400 साल पुराने। हाँ, अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं पानी देता हूँ कब्रों को। आपने कुछ ऐसे वाक़यात भी देखे होंगे? हाँ, रात का टाइम पे क्या वाक़यात हैं, कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को। ऐसे होते हैं ना, रात का टाइम पे ऐसा आवाज़ें आते हैं, ऐसे समझ लो नज़र आते हैं, गायब हो जाते हैं। बाकी तो नेवले सांप ये तो होते हैं। हाँ, मुझे भी नज़र आया। तो आप यहाँ पानी वानी डालते हैं? जी हाँ, तो आपको पैसे वगैरह मिलते हैं? हवाई रोजी है जी। कोई 50 देता है, कोई 100 500 भी देता है, हवाई रोजी है हमारा। अभी कोई आगे अंदर कब्रिस्तान में मौजूद है जो बात कर सकता है?
अभी इधर तो कोई नहीं है, बाकी इधर से आगे पीछे। तो आप अभी शुरू से यहाँ पानी डाल, जी हाँ, मुझे 30 साल हो गए इधर। तो कोई वाकया बताए ना कब्रिस्तान में, कोई ऐसा वाकया हो जो आपने पहली जिंदगी में पहली मर्तबा देखा हो। वाकया कैसा मतलब? जैसे कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान है, इधर आपको पता है कि आप बोल के सरिया भी चोरी कर देते हैं, वो भी चोरी कर लेते हैं, लेकिन कुछ डेड बॉडियां भी होती हैं जी हाँ, अंदर। आजकल औरतों की बॉडी के साथ कुछ नाजिया पे हरकतें भी हुई हैं। इधर नहीं हुआ है, ये मेवाशाह में नहीं हुआ, पापोश कब्रिस्तान में हुआ है, कोई और जगह में हुआ है, इधर नहीं हुआ है। हाँ, इधर ये हुआ है, बारिश होते हैं कब्रें गिर जाते हैं, हाँ खुल जाते हैं, बाकी कफन ऐसे ही का ऐसे ही होता है, मुर्दा भी ऐसे ही का। 200 साल वाली कब्र कहाँ है वो? वो मैं आपको उधर लेके जाता हूँ, मारवाड़ी होगा। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मेवाशाह आबादी भी ज़्यादा हो गई है, तकरीबन 1.25 लाख 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है कराची की, शहर कराची की आबादी से आप वाकिफ़ है। और उसके बाद ये जगह जो है ना फुल हो चुकी है, मेवाशाह फुल हो चुका है, और इसके मुतबादिल जगह सरकार ने दी है, माजगोर कब्रिस्तान दिया है, वहाँ पर भी तदफीनें हो रही हैं। सुपर हाईवे पे भी वादी हुसैन कब्रिस्तान है, और भी अजीमपुरा कब्रिस्तान है, कोरंगी का है, हर इलाके में अपने अपने कब्रिस्तान। यहाँ अभी ये कब्रिस्तान फुल हो चुका है। जी हाँ, वैसे जैसे आता है तो उसको रिटर्न हो जाता है या कोई ना कोई जगह होती है? कोई यानी कि थोड़ी बड़ी जो जगह बची है तो बची है, बकाया यानी कि फुल ही है, मतलब कि बड़ी मुश्किल से जगह निकालनी। मेरे हिसाब से 200 सदी गुजर चुकी है। ये 200 सदी साल पुराना कब्रिस्तान है, मेवाशाह कब्रिस्तान। ये वहाँ बड़ी बड़ी बस्तियाँ बैठी हुई हैं, जैसे मेवाशाह हुआ, सैयद बाबा इकबाल शाह, वाजिद शाह, खैरून अम्मा, और भी बहुत सौ औलिया वलिया हैं। हम लोग बचपने से यहाँ आते जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, फैज़ मिलते हैं, हर चीज़ मिलता है, लंगर पानी सब कुछ होता है, साल के मेले होते हैं। यहाँ कोई ऐसा वो नहीं होता है कि इंसान वो करे, यहाँ से शफा मिलती है, इंसान जब भी आता है, जब भी तो इंसान के पास वो होता है। अच्छा, यहाँ इस कब्रिस्तान में कोई ऐसा वाकया हुआ है कि जो बहुत अफसोसनाक वाकया कहलाया जाए? हाँ, गुजरे हैं बहुत से ऐसे ये इंसान, मुझे जिंदा होते हुए भी देखे हैं, बड़ी बड़ी हमने कब्रों में से आग निकलते हुए देखे हैं, हंसदे देखे हैं। जो जो होता है, जैसे इंसान के अमाल होते हैं भाई, वैसे इंसान के साथ उसके वो होते हैं। जब इंसान के साथ अपने ही अमाल सही नहीं होंगे तो दूसरा क्या करेगा? तो ये बताएं आप, ये कब्रिस्तान की जो ये तारीख है, इस तारीख के अंदर आपने कोई ऐसा वाकया देखा है जो हमारे नाजरीन को आप बता सकें? मैंने तो यही देखा है कि बुज़ुर्गों को ज़्यादा देखा है, और 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़ाहिर नहीं कर सकती हैं, और जो डराती भी हैं, धमकाती भी हैं। यहाँ साफ़ सुथरों का काम है, गंदे दिल का गंदा नहीं चाहिए। अच्छा, जो हिरोंचियाँ बैठे हुए हैं कब्रिस्तानों के अंदर, और यहाँ डकैतियाँ भी होती थी मेवाशाह के रोटों के ऊपर, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो ऐसे नशेई लोग हैं, इन्होंने इन दरबारों को बदनाम करा हुआ है भाई, वलीउल्लाहों को बदनाम करा हुआ है, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ नशे को अहमियत दी है, रियाजत को अहमियत नहीं दी है। भाईजान, कहने का मकसद ये है कि आप एक पहलू देखते हैं, हम दूसरे पहलू देखते हैं, सिर्फ समझने वाली की सलाहियत होनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं जो कब्रिस्तानों के अंदर नशा आवर होते हैं, नशा कर रहे होते हैं? कुछ नहीं बेटा, वो अपनी अपनी अमालों का सज़ा है, जिसके साथ अच्छा करा अच्छा आएगा, जिसके साथ बुरा होगा उसके साथ बुरा होगा। बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीन और हज़रात, आपने हर किसी की बात आपने सुनी भी और ये देखी भी, आपको कब्रिस्तान के शॉट भी नज़र आ रहे होंगे। और इसी तरीके से हमारे को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। शुक्रिया।